2026 फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस जिसमें पूछे गए थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी if light takes 6 minutes 40 seconds to reach the earth from the sun, the distance between the sun and earth in new units. Okay, very simple question. And question simply says this, simply distance, you know that velocity into time, and velocity here is unity, so it is 1 into time, it is 6 minutes 40 seconds. So 6 minutes means 6 into 60 seconds, and you will add in it 40 seconds. So it will be 1 into this plus 40. So you will get 360 plus 40, and that will be 400. So the distance between sun and earth in universe will be 400. So this option will be correct, option D. So this will be the option D. Okay, very simple question, इतना आसान पेपर नहीं होना चाहिए, ठीक है. So let me move to the second question, and second question is also very simple. मैचिंग क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से क्वेश्चन है. सो इट इज यंग मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो. And you know that Poisson ratio is simply lateral strain upon longitudinal strain. Okay, so जो Poisson ratio होता है sigma is equal to lateral strain divided by longitudinal strain. So it will be change in diameter over original diameter divided by longitudinal strain, change in length over original length. So change in length over original length, and that will be L upon delta L. So Poisson ratio से जो मैचिंग होगी इसकी वो होगी 1 पे, और Young's modulus you know that by is equal to normal stress upon longitudinal strain. So normal stress is F upon A divided by change in length upon original length, and that will be equal to F L upon A delta L. So it will be Young's modulus, option 2. Okay. And bulk modulus P, you can say it is simply F upon A divided by change in volume upon original volume, and F upon A is simply pressure, force upon area, and V upon delta V. And volume after compression decrease होता है, so that will be, you will put here negative sign. So bulk modulus will be option 4. And reciprocal of bulk modulus is simply compressibility. So compressibility will be option 3. So option 4 is correct. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल. So let's move on to the next question. And next question is this one. So this is question number 3, and it says that it's simply diodes लगे हैं. आपने सिर्फ ये देखना है कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है. ओके, रिवर्स बायस होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा डायोड, और फॉरवर्ड होगा तो कंडक्ट करेगा, मतलब उस रास्ते से करंट निकलेगा. ओके,
So question number 3 जो है basically वो very simple question. And it says simply कि you can check it here that you'll see it that so this is your question. So current I in this circuit पूछा जा रहा है. So यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी है, दिखे नीचे 10 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो डायोड है ये बैटरी के, ये इसका एन सेक्शन है, ये इस डायोड का एन सेक्शन है, और ये पी है, ये पी एन, और दिस इज एन पी, दिस इज पी एन. तो जब पी सेक्शन पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है तो फॉरवर्ड बायस होता है. सो ये वाला डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा और ये वाला भी फॉरवर्ड हो जाएगा. ये वाला कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस है, ये वाला भी कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस है. ठीक है. सो यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कितना है देखो 2 ओम का है और 10 वोल्ट का बैटरी है. बोलने का मतलब होगा कि 10 वोल्ट का बैटरी यहाँ लगा है. सो दिस इज योर 10 वोल्ट बैटरी एंड इसके साथ एक रेजिस्टेंस ये आपका 3 ओम और एक रेजिस्टेंस आपका 4 ओम. तो दिस विल बी द रेडियस फिगर 4 ohm, this is 3 ohm, and this is 10 volt battery. 4 ohm this and 2 ohm. Sorry, this was 2. This is 2. You can check it. ये वाला. So इसमें करंट पूछ रहे हैं तो आप सिंपल है 4 and 2 are in parallel, so you will get 4. If equivalent resistance will be multiply over divide, so you will get 8 upon 6 and you will get it is 4 upon 3. इतना आपका equivalent resistance आ गया. So voltage है 10 तो ohms law के according I is equal to P upon R, so 10 upon 4 upon 3 and it is 10 upon 4 into 3. So it is 30 upon 4 and we will get it is 215. So it is 15 upon 2 ampere current will be drawn by this system from the battery. Okay, so I think the answer to this question will be 15 upon 2. Okay, it's a very simple question. So this is 15 upon 2. Option 4 is correct, this one. So let me move on to question number 4, and question number 4 says very simple question. देखने से लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. नीट का पेपर इस बार बहुत ही आसान है भाई, बहुत हाई मेरिट जाएगा इसका. ओके, क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ होना चाहिए जैसे 2025 में था. ओके, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. Angular speed of flywheel is increased from so this is the question. Angular speed of flywheel is increased from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. Okay, the number of revolutions completed by wheel during this time. सो इस क्वेश्चन के लिए सिंपली आपने इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा वो कांस्टेंट है. हालांकि यहाँ लिखा नहीं है पर आप इसको मान लीजिए कि कांस्टेंट है. सो पहले तो इसका आपको अल्फा निकालना पड़ेगा. सो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी. सो अल्फा हो जाएगा यहाँ से ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी. ओके, and omega is you know that 2 pi f minus 2 pi f naught upon t. Okay,
यहाँ से 2 पाई कॉमन आ जाएगा, f माइनस एफ नॉट अपॉन टी, and you know that 2 pi f simply means frequency. So rpm जो है आपका वो rps में बदलिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, rps होता है रोटेशन पर सेकंड होता है, सिंपल। सो इसको 60 यदि आपका ये है तो यहाँ आप लिखोगे 6, फाइनल फ्रीक्वेंसी इज 1200, सो 1200 अपॉन 60, आरपीएस हो गया माइनस 600 अपॉन 60 and it is 10. Okay, so it will be 2 pi alpha आ रहा है यहाँ से, ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस आ जाएगा 10 अपॉन 10. Okay, so if you solve it you will get 2 pi into 10 upon 10, so 10 will cancel, you will get 2 pi radian per square second. So this will be your alpha. अब अल्फा आपका निकल गया, तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम, और नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड पूछ रहा है. ओके, सो number of rotations per second means so यहाँ से फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए मीन अल्फा टी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से आप किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हो. सो अल्फा आपका यहाँ से मैंने बताया आपको कि 2 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया. ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे अब. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ जाएगा, यू नो दैट फॉर्मूला इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओके, सो ओमेगा नॉट जो है आपका वो है यहाँ पे 600 आरपीएम. ठीक है, सो यहाँ से ये आ जाएगा 2 पाई एफ नॉट टी ऐसे लिख सकते हो प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, आपको 2 पाई और एफ नॉट आपका है यहाँ देखो लेफ्ट साइड में, जो आपका एफ नॉट है वो है ये 600 आरपीएम. सो ये हो गया 600 आरपीएस में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, और टाइम दिया हुआ है आपको यहाँ ये 10 सेकेंड. सो प्लस हाफ अल्फा आपका 2 पाई है, तो 2 पाई और टाइम यहाँ 10 सेकेंड है, सो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा अगले स्टेप में. ठीक है, सो भाई ये काट के 10 आ गया, सो ये बन गया आपके पास 100, ये आ गया 200 पाई प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो हो गया 100 पाई. सो ये आ गया 300 पाई रेडियन. ठीक है जी, तो ये आ गया. इसका मतलब आपको अब ये दिखाना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड ड्यूरिंग 10 सेकंड्स कितना है. तो आपको पता है कि जो आपका जब एंगल आपका 2 पाई रेडियन एंगल जब मुड़ता है तो एक रोटेशन होता है, तो जब यूनिट रेडियन मुड़ेगा तो 1.2 पाई हो जाएगा, और जब आपका एंगल 300 पाई रेडियन मुड़ेगा तो फिर रोटेशन देख लेते हैं कितना है, 1.2 पाई इंटू 300 पाई. पाई विल कट कैंसिल एंड 2 से ही आपका 300 गया, 150 रोटेशन आपका आंसर आ जाएगा. ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी सिंपल ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी बड़ा या नया नहीं था. ओके, सो यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक दैट. ओके, ये है, इसमें सिंपल ही पूछ रहा है कि यदि आपके पास इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, pendulum having time period t, the variation of
काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन ये पूछ रहा है, ये है क्वेश्चन, देखिए। और सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड टी वेरिएशन का एनर्जी विद टाइम टी कैसे होगा, कारण एनर्जी मतलब कैसे वेरी करती है टाइम के साथ। सो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड रहता है वो आप देख सकते हैं फॉर्मूला से। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। सो यदि मैं आपको लिखूं, यदि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है पेंडुलम के केस में, या यू कैन से सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो रहता है काइनेटिक, वो होता है आपका हाफ एम पे, सिंपल फॉर्मूला ये रहता है। और वी क्या होता है आपका हाफ एम, वी की वैल्यू होती है आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया, तो इसका होल स्क्वायर है। So it will be half m r square omega square cos square omega t। और ये cos square का जो आपका ग्राफ रहता है वो सिंपली यहाँ देख लेते हैं कौन सा ग्राफ होता है cos square का। So cos square का जो ग्राफ है उसको देख लेते हैं। ये है ग्राफ के काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ। सो cos square का ग्राफ ही होता है थर्ड वाला, ये वाला। So option 3 will be the correct option, okay? So this will be option 3, ये वाला। क्योंकि जो फॉर्मूला ये रहता है ना काइनेटिक एनर्जी का, ये बताया मैंने आपको, cos square ओमेगा टी। ठीक है, सो cos square ओमेगा टी ये ग्राफ रहता है ये। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और यदि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन। सो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, वेरी सिंपल। A resistor is connected to battery एंड इसमें टर्मिनल वोल्टेज का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। 12 वोल्ट ईएमएफ है, 10 इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इफ करंट इन द सर्किट इज 0.2, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। सभी as you know, EMF is given 12 volts, 12 minus current is given 0.6, so 0.6 internal resistance is given 2, so it is 12 minus 1.2 and it is I think 10.8 volt. This was very simple, option 4 is correct option, ठीक है। so इसमें था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा कि इट इज आंसर इज 10.4, ये ऑप्शन ठीक है इसका। तो वही अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो दिस इज योर 7th क्वेश्चन, लेट मी recall it, where is 7, this is 7th question। Let me adjust it. So this is your 7th question। So ये है 7th, है सिंपल है ये भी। सो इसमें सिंपल ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका एक ये वाला a flask contains argon and chlorine in the ratio 2:1 बायोमास, नो प्रॉब्लम। मिक्सचर है ये, टेम्परेचर मिक्सचर का फिक्स है 27 डिग्री सेल्सियस, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 2 गैसेस
एक आर्गोन है और दूसरी क्लोरीन है। अब इसमें RMS वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो जो आपका RMS वेलोसिटी होता है दैट इज C इज इक्वल टू √3 RT/m होता है भाई। m मॉलिक्यूलर वेट है, सिंपल। मिक्सचर का T तो सेम है 27 डिग्री सेल्सियस, R कांस्टेंट, सो C जो है बेसिकली वो T कांस्टेंट है यहाँ, तो √m के प्रोपोर्शनल आ रहा है भाई। अब इसमें आप देख लो कि इसमें आर्गोन और क्लोरीन है, तो C आर्गोन का अपॉन C क्लोरीन का दैट विल बी इक्वल टू, उलट है तो यहाँ क्लोरीन ऊपर आएगा और आर्गोन नीचे आएगा, ठीक है, ये आ गया। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्लोरीन का आपको दिया हुआ है यहाँ पे 70, तो इट विल बी 70 अपॉन आर्गोन का दिया हुआ है ये 40, क्लोरीन का ये था, तो ये आ गया आपके पास, और इसका अंडर रूट है, so √7/4 का रूट होगा 2, so option 1 will be correct option. But very simple question, okay. We'll move on to the next question, number 8, and this question simply says that सिंपली प्रिज्म पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, सो दिस इज योर 8th क्वेश्चन ये। सो यहाँ से यदि मैं देखूं तो इसमें सिंपल हमें ये लग रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम प्रिज्म इक्विलेटरल प्रिज्म में भी सी इक्विलेटरल एंगल 60 रहेगा, तीनों एंगल 60 रहेंगे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे QR इज पैरेलल टू बेस। जब रिफ्लेक्टेड रे बेस की है, रिफ्लेक्टेड रे आपकी QR पैरेलल टू बेस जाती है, तो प्रिज्म आपको पता है मिनिमम डेविएशन पोजीशन में होता है, ठीक है। सो आपको पता है कि प्रिज्म के लिए जो रिलेशन रहता है वो रहता है इट इज डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू I प्लस E, ठीक है। और जब प्रिज्म आपका यहाँ से आ जाएगा I प्लस E माइनस ए, ओके। जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पोजीशन में रहता है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है ये, तो I इक्वल टू E हो जाता है, इसका I प्लस I हो गया माइनस ए, सो हो गया 2I माइनस ए, सो दिस विल बी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, सो ये 2 और angle of incidence is given 50 degrees, so it is 2 into 50 minus angle of prism is 60 degrees, so it is 60, so 100 minus 60, that will be 40 degree. But very simple question, okay. So this option will be 40 degree, okay. So let me move on to the next question, and next question is मैचिंग क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो भाई इसमें तो है ही कुछ नहीं है, तो बहुत ही सिंपल, देखने से ही लग रहा है कि ये सिंपल है। और ये क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये है आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें आप देखें तो E इक्वल टू H न्यू जो रहता है वो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है भाई, ठीक है। लैम्डा इक्वल H अपॉन P D, तो इससे सिंपल क्या हो सकता है। डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस जो होता है बेसिकली वेव नेचर ऑफ लाइट होता है, और कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दर्शाता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, कुछ नहीं है इसमें, वेरी सिंपल। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। लेट मी मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन। सो दिस इज योर 10th क्वेश्चन, लेट मी रीड इट। क्वेश्चन ये बोलता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहीं से, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो ऑर्बिट नंबर कितना होगा, ऑर्बिट नंबर होगा 2, एन इज इक्वल टू कितना हो गया 2। बाकी एनर्जी वगैरह और सेकंड मतलब ऑर्बिट में -3.4 ही होता है, बिकॉज एनर्जी का फॉर्मूला रहता है एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो यदि एनर्जी में 3.4 भरूंगा, ये -3.4 में यदि सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तब भी आपका जो n है बेसिकली वो आपका n आ जाएगा यहाँ से 2। पर आपको ऐसा करने की जरूरत है ही नॉट दिस टाइम, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 2। कोई पूछ रहा है कि रेडियल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियल डिस्टेंस रेडियस इन nth ऑर्बिट रहता है 0.53 n स्क्वायर। The answer will be an angstrom. अब n के लिए यहाँ 2 है तो we will put 5 3 into 2 का स्क्वायर angstrom।
So it will be 0.53 into 4 एंगस्ट्रॉम. So I think ये एंगस्ट्रॉम कितना होता है भाई, 10⁻10 होता है. So it will be 2.1 approximately into 10⁻10 मीटर, because 1 एंगस्ट्रॉम होगा 10⁻10 मीटर. ऑप्शन 3 will be the correct option. पहले इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फर्स्ट रजिस्टर से ये पहचाना था कि ऑर्बिट नंबर कौन सा है. ऑर्बिट नंबर यदि 2 है तो फिर सेकेंड ऑर्बिट में रेडियस क्या रहता है. nth ऑर्बिट में फॉर्मूला आपको पता है, n की वैल्यू 2 भरना है. ऑप्शन आपका आंसर आपका आ जाएगा. ओके, सो यहाँ भी सिंपल था, कोई इसमें टफ नहीं था कुछ भी, वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. और ये लग रहा है मुझे क्वेश्चन सिंपल है. बॉक्स ऑफ मास 15 kg is kept on floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction, the 0.1, to keeping the box stationary in the stationary state over the trolley. The maximum acceleration with which the trolley can be moved. इसमें सिंपल है कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है फिजिकल टू, जो भी आपका फोर्स का फॉर्मूला रहता है वो रहता है फिजिकल टू एम ए, दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, सो ये हो जाएगा एम ए. मैक्सिमम एक्सेलरेशन यदि लेना है आपने तो इसका मतलब हो गया कि ये होता है म्यू आर, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है तो ये हो गया एम ए एम इज इक्वल टू म्यू एम जी. एम विल कैंसिल, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता है वो रहता है म्यू जी. नाउ म्यू इज हियर विद 0.12 and g is also given 10. So I think it is 1.2 meter per square second. So option 4 was very simple. So let me move on to the next question, and next question is this one. ये जो क्वेश्चन है ये कैपेसिटर पे है और बहुत ही सिंपल लग रहा है, देखने में सिंपल लग रहा है, डायग्राम से ही सिंपल लग रहा है क्वेश्चन. ठीक है, सो इसको देख लेते हैं आप. सो इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो जो ऊपर वाले कैपेसिटर्स आपको दिख रहे हैं ये आपके ये वाली जो है ना आपका C1, C2, C3, C4, ये तो भी सीरीज में है, तो एंड टू एंड कनेक्टेड है. ठीक है, तो यदि ये सीरीज में है तो हर की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है. इन सब की 10 है, 10 ये भी 10 है, 10 माइक्रोफैरेड, 10. 10 जब सीरीज में होंगे तो इन इफेक्टिव आ जाएगा इसका 10 अपॉन उनका नंबर, एक जैसे है ना सारे, तो फॉर्मूला रहता है C अपॉन n. तो यहाँ C हो गया, C हर 10 माइक्रोफैरेड का है, कितने नंबर में है 4, तो आ जाएगा आपके पास 5/2 मतलब 2.5 माइक्रोफैरेड. ये आ जाएगा इफेक्टिव ऊपर वाला इनका, और C इफेक्टिव हो जाएगा आपके पास बिकॉज C5 के साथ वो पैरेलल हो जाएगा CS, तो इसका मतलब C5 प्लस CS, तो C5 आपका 2.5 है, ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो ये, और CS आपने निकाल लिया. CS का मतलब इस कॉम्बिनेशन ये जो दिख रहा है ना ये सीरीज में सारे, तो इसका 2.5 आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड. बिल्कुल सिंपल. अब क्वेश्चन है कि ये यदि मैं इसका रिड्यूस फिगर बनाऊंगा तो नीचे 50 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है ये वाला. ठीक है, तो यदि मैं 50 वोल्ट का बैटरी आपको यहाँ दिखाता हूँ 50 वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर वाला जो है ये C5 है, ये C5 है, और ये ऊपर वाला CS है, और इस CS में 4 हैं, C1, C2, C3, C4, और फिर यहाँ से जुड़े हुए हैं, और तो ये आ गया. अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया बैटरी के साथ इन दोनों का. ठीक है, तो पैरेलल में V सेम होता है. ठीक है, तो यदि मैं इसके अक्रॉस बोलूं कि चार्ज पूछ रहा है शायद वो करंट कैपेसिटेंस तो आ चुका है हमारा 5 माइक्रोफैरेड, ये तो ये 5 माइक्रोफैरेड आ चुका है, लेकिन 5 माइक्रोफैरेड 3 ऑप्शंस में है. ठीक है, अब आपने ये पूछ रहा है कि चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, सब पे चार्ज निकालना है. ठीक है,
तो भाई इसके ऊपर चार्ज निकालोगे C5 के ऊपर, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है Q इक्वल टू CV। तो ये हो गया C5 इंटू बी। तो C5 है कितना, C5 है यहाँ से 2.5, ये देखो, तो 2.5 इंटू 50 तो कितना आ जाएगा ये, 10×5 = 50, 125 आ जाएगा ये, 125 माइक्रोफैराड चार्ज। ठीक है, और चार्ज जो है इफेक्टिव वोल्टेज आपकी 5 है। ठीक है, देखो ना, इफेक्टिव वोल्टेज 5 है और टोटल चार्ज Q इक्वल टू C इफेक्टिव CB, और टोटल वोल्टेज C इफेक्टिव कितना है आपका, C इफेक्टिव आपका 5 है और वोल्टेज 50 है। इसका मतलब टोटल चार्ज जो है वो है 250 माइक्रोफैराड। ठीक है, और पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, मतलब यहाँ से जो चार्ज चल रहा है वो चल रहा है 250 माइक्रोफैराड, है ना। और ये CSB 2.5 माइक्रोफैराड है, ये लिखा हुआ है, और C5 भी ये लिखा हुआ है 2.5 माइक्रोफैराड है। अब तो मुझे बताओ कि 250 चार्ज पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, अब ये दोनों ही इक्वल हैं, कैपेसिटेंस दोनों के सेम है, तो चार्ज डिवाइड 250 को करना है आपने, टोटल चार्ज 250 माइक्रो कूलम है, फैराड नहीं सॉरी कूलम, चार्ज जो कूलम यूनिट होता है उसका। ठीक है, और यहाँ भी कूलम ही होगा ये। सो 250 को दोनों वैल्यू सेम है, पोटेंशियल वैल्यू सेम है, तो बराबर डिवाइड होगा। इसका मतलब 2.5 का 2.5 यदि इसके पास है, ठीक है, 2.5 माइक्रोफैराड के पास कितना चार्ज है और इसके पास कितना चार्ज है, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो टोटल जो चार्ज चला वो 250 माइक्रोकूलम, और ये हम इसके अक्रॉस निकाल चुके हैं, ये जो है ये Q5 के अक्रॉस निकाल चुके हैं, मतलब इसके अक्रॉस 1.25 है, तो इसका जो आधा होगा वो इसके अक्रॉस होगा। समझो बात, दोनों वैल्यू सेम है ना, 2.5 माइक्रोफैराड 2.5 माइक्रोफैराड, और चार्ज डिवाइड करना है 250 माइक्रोकूलम को डिवाइड करना है आपने, तो इसका मतलब 1.25 माइक्रोकूलम यहाँ आएगा और इसके अक्रॉस 1.25 माइक्रोकूलम आएगा। और ये सारे के सारे CS में कितने टोटल थे, चार थे। तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो जितना इसको मिला उतना सबको मिलेगा, तो 1.25 देखो 1.25 माइक्रोकूलम ऑल कैपेसिटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ओवरऑल, दिस इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, आगे चलते हैं। So let me move on to next question, and next question is question number 13. अब देखो 13 क्वेश्चन जो है बेसिकली यदि आपने आर्टिकल ढंग से पढ़े हो ना, डेरिवेशन के अंदर तुम घुसे हो बढ़िया करके और तुम्हें पता है होता क्या है बेसिकली, तो अगले क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ एसके वेलोसिटी जिस बच्चे ने पढ़ी है ना ढंग से डेरिवेशन करा है वो उसको कर लेगा, वो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दिस इज योर 13 क्वेश्चन, कि भाई ऐसा है, the amount of work done in to raise a mass m from the surface of earth to the height equal to radius of earth। तो जब हम सरफेस से एस्केप करते हैं, जब हम सरफेस से किसी बॉडी को एस्केप करते हैं तो उसको एस्केप वेलोसिटी की इक्वल वेलोसिटी देना पड़ता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यू नो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देना पड़ता है सरफेस से, दिस इज एस्केप वेलोसिटी। लेकिन उसको एस्केप करना है तो आप कहाँ से कर रहे हो, सरफेस से। तो जब तुम ऐसा करते हो तो तुम क्या करते हो, देखो तुम ये करते हो कि जो वर्क होगा बेसिकली वो होगा ये होगा F, तुम dr लिख देते हो। अब ये अर्थ है, आप सरफेस से एस्केप कर रहे हो, यहाँ से रेडियस R है, ठीक है। सेंटर से लेनी होती है O से, और अपर आपने उस बॉडी को एस्केप करना है तो कहाँ तक ले जाते थे, इन्फिनिटी तक। तो अपर लेवल इन्फिनिटी होता था यहाँ पे,
लेकिन ये बोल रहा है कि सरफेस ऑफ अर्थ से कहाँ ले जाना है, हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब इन प्लेस ऑफ इन्फिनिटी यू विल राइट आर। ये ठीक है इन्फिनिटी। अब ये डिस्टेंस इन्फिनिटी जो लेते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ से लेते हैं ना कि यहाँ से, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r। अब ये ओवर इन्फिनिटी में ले जाना अपने, सिर्फ इसको कितना स्केप करना है जितना ये सेंटर से दूर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है इस पॉइंट पी तक, और पॉइंट पी की दूरी आर ही है, तो सेंटर से कितना दूर हुए 2r है ना। सरफेस से स्केप करना है तो डिस्टेंस मेजर सेंटर से लेना है, दिस इज द मेन पॉइंट। सो यहाँ थे तो डिस्टेंस सेंटर से आर था, जब तुम यहाँ पहुंच गए तो डिस्टेंस सेंटर से आर प्लस आर 2r हो गया, तो अपर लिमिट विल बी 2r। तो ये कंसेप्ट से करो क्वेश्चन। तो यदि मैं यहाँ से बात करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फोर्स ग्रेविटेशन उस बॉडी पे लग रहा है G(m)m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, dr 2r क्लियर। अब यदि मैं यहाँ लिख दूँ Gm को बाहर लाता हूँ इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा GR स्क्वायर, Gm GR स्क्वायर की इक्वल होता है, और m साथ में बाहर आ गया ये वाला। अब उनके पास यहाँ बचा r टू 2r, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर dr, और 1 प्लस के dr माइनस 1 अपॉन r होता है उसका इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा तो ये जगह यहाँ कर देता हूँ आगे, ये हो जाएगा GR स्क्वायर m, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन r, और ये हो जाएगा लिमिट चले जाएंगे लास्ट में r टू r। इसको सॉल्व करता हूँ, हो जाएगा GR स्क्वायर m, इस माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो पहले 2r लिखना पड़ेगा, माइनस लगा के लोअर लिमिट 1 अपॉन r। सो यहाँ से माइनस GR स्क्वायर m, सो r यहाँ कॉमन आ जाएगा, बाहर लिख दिया मैंने, यहाँ बचेगा 1/2 माइनस 1। सोचो यहाँ से देखो ना, माइनस GR स्क्वायर m अपॉन एक r ये कैंसिल हो गया, और में mgr ही बचा, यहाँ देखो माइनस mgr, और यहाँ बचा माइनस हाफ, तो आ जाएगा माइनस 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 0 माइनस प्लस हो जाएगा। सो mgr अपॉन 2, इतना वर्क करना पड़ेगा। ये w तो निकाल रहे थे हम, देखो ऊपर से w तो निकाल रहे थे, देखो। सो इट विल बी ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को मान सकता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था, पर था आसान, इसको हम ये नहीं मानेंगे कि टफ क्वेश्चन था, इट वाज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये है क्वेश्चन नंबर 14। सो भी इसमें देखो, इसमें ये सिंपल चीजें पूछी जा रही है कि भाई मास दिया हो आपको, ओके, जब आपको मास दिया जा रहा है तो फिर ये देख लेते हैं यहाँ पे। सो रीड दिस क्वेश्चन नाउ, इसमें ईच साइड ऑफ मेटेलिक क्यूब, और मास है उसका जो भी है, मास की वैल्यू m इज इक्वल टू 5.580 kg, और उसकी जो साइड है मेजर टू बी दिस मच, इज इक्वल टू लेंथ 9 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्यूब, डेंसिटी होती है मास बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्यूब है, तो मास की वैल्यू 5.580, यदि मैं भरता हूँ तो लेंथ की वैल्यू, इसको केजी में भर रहे हैं तो लेंथ की वैल्यू 9 सेंटी का मतलब होता है 10⁻², और उसकी पावर कितनी है 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो डेंसिटी आ जाएगी यहाँ से ये, तो यदि आप सॉल्व करें इसको तो ये लगभग आएगा 7.654,
और इसने ये चीज बोली है कि कीपिंग दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। तो बताइए यहाँ 5 है तो 5 से आगे नंबर 4 है ना। तो इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये कितना बनेगा 7.65। 5 से बड़ा नंबर होगा यहाँ, जैसे यहाँ 4 है, 5 से लेस होगा तो यहाँ इंक्रीज नहीं करेंगे 1 से, और 5 से यदि ग्रेटर होगा तो यहाँ इंक्रीज कर देंगे 1 से। अब ये 4 इज लेस देन 5 तो पीछे वाला वैसे रहेगा। सो ये आ जाएगा जिसका मतलब इन प्लेस ऑफ x 7.65 होगा, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है ये क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग प्लॉट्स वेरिएशन ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जैसे एक बॉल को आपने यहाँ ग्राउंड से ऊपर फेंका, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ग्राउंड से ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होती जाती है, यहाँ कुछ नीचे वेलोसिटी देनी पड़ेगी, यहाँ कुछ यू होगा इसका, और यहाँ वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। और जब ये नीचे को आएगी ऐसे तो फिर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, और मैक्सिमम हो जाती है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए कि ऊपर को वेलोसिटी घट रही है तो यहाँ वेलोसिटी देनी पड़ी मुझे कुछ यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे मुझे वेलोसिटी देनी पड़ी तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ वेलोसिटी मुझे ग्राउंड से देनी पड़ेगी। जब वेलोसिटी मुझे देनी पड़ेगी तो फिर ये वाला ग्राफ देख लेते हैं जी। देखिए ध्यान से, अगर मैं ग्राउंड पे है तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी तो ऊपर जाएगी, कुछ वेलोसिटी यहाँ होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और जब ये बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी बॉडी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 होगी। उसके बाद वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, अब वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन बदल दी तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो यदि हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड क्वेश्चन नंबर 16। 16 ये बोल रहा है कि जो आपकी सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, सिंपल स्पीड ऑफ दिस सिंपल होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो जब भी बॉब होता है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होती है और v जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ मैक्सिमम होगी, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ही टोटल के बराबर होगी यहाँ, ये आपने यहाँ सीखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के टोटल के बराबर होगी, और वो कितनी दी जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ एम बी स्क्वायर। वो कितनी दी जा रही है, हाफ एम वी स्क्वायर, और मैक्सिमम होती है वेलोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, वैल्यू गिवन इज 0.02 ये वाली। सो यहाँ से आपके पास वी एम स्क्वायर हो जाएगा जी 0.02 एम 0.02 इंटू 2 उधर चला जाएगा और एम आ जाएगा नीचे, ठीक है। और यदि फिर आप वी एम निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो ये आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 0.04 और एम की वैल्यू पुट कर देते हैं। मास जो है एनर्जी की वैल्यू आ गया, स्पीड ऑफ मास जो है वो 20 ग्राम, सो 20 इंटू ग्राम का केजी 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास 104 अपॉन 20 और ऊपर चला जाएगा 10⁻3, ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
सो ये यदि हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 4/2 है और 20 है, 10 की पावर 100 आ जाएगा, नीचे 10 की पावर 2 और आ जाएगा 10 की पावर 3। तो ये 3 से 2 कट गया, ये भी कट गया, तो आपके पास बचा ये √2। √2 होता है 1.41 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। सो ऑप्शन 2 is correct. Okay, so let me move now on to question number 17. So ये हो गए सारे, अब हम 17th पे जा रहे हैं। So this is your 17th question. तो इसको पढ़ते हैं और ये सिंपल ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि यही यंग मॉडुलस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो फॉर्मूला होता है ये cos स्क्वायर 5/2, ठीक है, 5 फेज डिफरेंस है। बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट स्क्रीन व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, इंटेंसिटी के है। तो हमें पता है कि जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है फाई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा एक्स है ना जी, आपको ये दिया हुआ है आपको लैम्डा, तो यदि मैं लैम्डा यहाँ भरता हूँ तो आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू लैम्डा। सो आपके पास आ जाएगा 2 पाई, डेल्टा फाई आ गया 2 पाई, यहाँ पुट कर देते हैं, डेल्टा फाई नहीं फाई बोल दो, एक्स है पाथ डिफरेंस। सो यहाँ से आपका फाई 2 पाई यहाँ पुट कर दो। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 मतलब 2 पाई अपॉन 2। ठीक है, और ये वैल्यू जो है आपको दी हुई है इंटेंसिटी की के यूनिट्स, पॉइंट इज के यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर 5/2, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको cos 5/2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास आई नॉट cos, तो आ जाएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2। ये तो इसको पुट करेंगे वैल्यू ध्यान से। सो व्हाट यू विल गेट, cos स्क्वायर 2 पाई/2, cos पाई होता है -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सो आई नॉट ही बचेगा, और यही वैल्यू आपको के यूनिट्स दी हुई है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट पाथ डिफरेंस λ/3 हो जाए, तो यदि यहाँ λ/3 हो जाए तो फाई कितना होता है देख लेते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू λ/3, तो आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो देयरफॉर आई डैश हो जाएगा आई नॉट कॉस, ऊपर पुट करेंगे यहाँ पे स्क्वायर 2 पाई/3, और नीचे 2 भी है तो यहाँ 2 भी हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल। cos π/3 का मतलब cos 60 होता है आपके पास हाफ, तो हो जाएगा हाफ का स्क्वायर, तो हो जाएगा आई नॉट की वैल्यू के बराबर है, के अपॉन 4 हो जाएगा आंसर। ये आ गया, ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें टफ नहीं कुछ नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो भी क्वेश्चन नंबर 18 कुछ अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि यहाँ खास बात पता है क्या है, खास बात ये है कि यहाँ पर ये जो आपका
ये जो पूछा जा रहा है वो वोल्टेज पी नहीं क्रॉस डायोड पूछी जा रही है, ना कि वोल्टेज क्रॉस आर पूछी जा रही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेव रेक्टिफिकेशन में होता है ऐसा, लेकिन जो हम आउटपुट निकालते हैं उसमें जो डीसी नेचर का आता है ना, वो वोल्टेज क्रॉस आर होती है, यहाँ वोल्टेज क्रॉस डायोड पूछ रहा है, तो ये था इसमें डिफरेंस। तो इसमें सिंपल है कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट एसी का चलेगा तो उस टाइम ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, तो ये पहले केस में तो रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस में करंट आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ वोल्टेज आने का मतलब ही नहीं है, तो जो भी वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस ही पीर हो जाएगी, अब पीर हो जाएगी तो ये दिखेगी ऐसे, और जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव और तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड, तो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा तो वोल्टेज अक्रॉस आर दिखेगी, यहाँ नहीं दिखेगी, तो यहाँ जीरो होगी, ये वाला ऑप्शन 4 लग रहा है मुझे, ये होना चाहिए इसका। ठीक है, और यदि हम आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, 19 देख लो, ये वाला आसानी है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटर इंडक्टर दिया हुआ है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी अंडर रूट, तो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई, एल इंडक्टेंस है, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 1 मिली हेनरी, तो इसकी जगह लिखोगे 1 मिली 1 इंटू 10⁻³ हेनरी, सी की जगह लिखोगे 0.1 माइक्रोफैरड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, तो यदि तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर विल बी दिस मच। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, इंटरफेरेंस लाइट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, it reduces in one region producing a dark fringe region, other region producing, बिल्कुल ठीक। ये कुछ वहाँ इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस लाइट में क्या होता है, जो एनर्जी है उसका क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी जहाँ मिसिंग होती है वहां उतने रीजन में आगे जाके पीर हो जाती है। ठीक है, तो डार्कनेस वाले रीजन में एनर्जी जीरो है, आगे वाले रीजन में वो पीर हो जाएगी, वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा, वेरी सिंपल। सो मतलब कंजर्वेशन एनर्जी भी इस चीज है, तो एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी दीज फिनोमेना आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल कंजर्वेशन एनर्जी, बिल्कुल ओके है। डायवर्जेंट इंटरफेरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड ओनली व्हेन नो लाइट वेव, लाइट वेव साउंड वेव्स में भी होते हैं फिनोमेना, ये रॉन्ग लगा है, ए ट्रू बी फॉल्स। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है कि वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस मच, सेपरेशन डेल्टा एक्स दिया हुआ है आपको, तो डेल्टा एक्स जो है आपका वो 0.5 मीटर है, मतलब पाथ डिफरेंस, दिस इज गिवन 0.5 मीटर। ओके, सो ये इक्वेशन होता है आपका बाई इज इक्वल टू, क्या होता है इक्वेशन, बाई इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ऐसे इक्वेशन से आपने कंपेयर करना है वेव इक्वेशन। सो दिस इज प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। सो यहाँ पे जो वैल्यूज दी जा रही हैं वो देखो जरा, के की जगह क्या है, इस के की जगह तो ये दिख रहा है, साथ में 2 पाई भी है। सो के जो है बेसिकली वो 2 पाई इंटू 0.008 है, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में, मतलब ये सेंटीमीटर में। ठीक है, सो तुम्हें पता है कि के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, सो यहाँ से लैम्डा हो गया 2 पाई अपॉन के, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा हो गया 0.008 सेंटीमीटर, और लैम्डा हो गया 0.008 सेंटी का मतलब होता है बटा 100 मीटर, जो लैम्डा यहाँ से हो गया कितना हो गया मीटर में,
पाई अपॉन के नीचे आएगा, 2 पाई तो कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन 0.008 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से 0.008 है ना, तो इसके बनाएंगे मीटर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, आ जाएगा लैम्डा मीटर में। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आ जाएगा 8 बटा कितना हो गया ये, 1 2 3 गुना 100 हो गया है। ठीक है, और यदि तुम यहाँ सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 0.5 मीटर क्या दिया हुआ है, इस फेज डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो फेज डिफरेंस चलो यहीं ऐसे रखते हैं, अभी कोई बात नहीं। के लैम्डा 2/1 की वैल्यू 2 पाई कट गया है, बची। ठीक है, सो यहाँ से डेल्टा फाई होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, डेल्टा एक्स हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। एक्स आपको यहाँ देगा 0.5 मीटर। 0.5 मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना तो ऐसे लिखोगे, आ जाएगा 0.5 इंटू 100, ये बन गया इसका सेंटीमीटर अपॉन 0.008। ठीक है, टू पाई कैंसिल हो गया था ना यहाँ पे, तो ये बचा था लैम्डा की वैल्यू। सो इसको यदि आप सॉल्व करोगे ना, सो यहाँ से आपके पास ये बचेगा 2 एकम 2 0.004, तो ये बचेगा 1/2 हो गया ये, इंटू 100 अपॉन 4 इंटू कितना आएगा ये 10 रेज़ टू दी पावर, तो ये भी थोड़ा सा इसमें सेंटीमीटर मीटर में घुमा दिया बंदे ने। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ दोबारा देख लेता हूँ, तो इसमें सिंपल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, तो मीटर में चलो या सेंटीमीटर में चलो, यहाँ तक सेंटीमीटर में बात हो रही है, यहाँ पे सेंटीमीटर से इसको मीटर में बदल लो, 0.08, हाँ सेंटीमीटर है ये। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा 2/1 के 0.008, सो यहाँ से के की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हम, तो लैम्डा 2 पाई अपॉन के ये आ गया, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के, 2 पाई इंटू 0.008, 2 पाई कैंसल, सो ये हो गया 1/, ये बन गया 1000, 3 0 अपॉन 8, तो ये बन गया 8 एकम 8, तो 8 2 16, 125 बन गया ये। ठीक है, यदि 125 आ गया तो फिर अब आपको पूछा जा रहा है कि फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई अपॉन 125 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 मीटर, आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, तो 25 दूना 50, 25 15 125। ठीक है जी, सो 4/5 पाई आ गया है, सो आ जाएगा आपको 0.8 पाई, और ये एंगल है तो एंगल होगा रेडियन में। ठीक है, तो सेंटीमीटर में गलती है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी मैंने पुट करी, इसको सॉल्व किया तो 125 आ गया ये सेंटीमीटर में, लंबाई को 125 सेंटीमीटर हमारी, 0.5 मीटर का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ करी, और आंसर आ गया 0.8, ऑप्शन बी वाज ओके आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जिसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 22, बहुत क्वेश्चन है भाई।
22 में बोल रहा है कि एक मास है ये, दिस इज योर मास 2 kg का, इसको 90 डिग्री पे फोर्स लग रहे हैं, इधर को 6 लगा सपोज और इधर को 8 लगा, ठीक है। तो आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए तो नेट फोर्स ये होगा, पैरेललोग्राम लॉस ये वाला। तो आपको बताइए कि जो फोर्स होगा एफ डैश बोल देते हैं, एफ डैश हो जाएगा यहाँ से 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इन दोनों के बीच एंगल 90 है, तो आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ट्रेडिशन में आगे cos 90 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 10 न्यूटन। तो ये हो गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन में जो एंगल बनाया होगा वो होगा आपका, यदि ये 6 है ये वाला तो ये भी 6 ही होगा, 6 न्यूटन। तो इस एंगल tan थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन ओ बी, मतलब ए बी 6 न्यूटन अपॉन 8 न्यूटन, मतलब हो जाएगा 3/4, ठीक है। tan थीटा हो गया 3/4, सो थीटा हो गया tan इनवर्स 3/4। दिस इज दी डायरेक्शन, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 8 न्यूटन से कितने डिग्री पर इंक्लाइन होगा, tan इनवर्स 3/4 पे। रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिस मच विद 8 न्यूटन फोर्स, ऑप्शन 4। और रिजल्टेंट फोर्स 10 है तो फिर मास यदि 2 है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m, तो 10 अपॉन 2, मास कितना है, मास है 5 kg, सॉरी मास 5 kg है, तो यहाँ 5 है एक्चुअली, तो ये आ जाएगा 5, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड और रिजल्टेंट फोर्स का 8 न्यूटन के साथ जो एंगल रहेगा वो रहेगा tan इनवर्स 3/4, सो ऑप्शन 4 विल बी द ऑप्शन। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन है एक छोटा सा, ये 23rd। तो भाई 23rd क्वेश्चन जो है इसको करने के लिए सिंपल ही है, कॉमन पोटेंशियल क्वेश्चन है। 2 uncharged capacitors, equal capacitance 2 picofarad, one of them is charged by 2 volt, 100 volt supply and disconnected and connected to uncharged capacitor, ठीक है। सो कॉमन पोटेंशियल इस केस में कितना होगा, कॉमन पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन CQ से C1 प्लस C2। तो वही C1V1 यदि हम शुरू वाले कैपेसिटर को ले आए तो वन ऑफ से चार्ज्ड बाई 100 वोल्ट, सो पिको में रहने देते हैं 200 था एक भी पिको फैरेड में, और वोल्टेज थी इसको 10 अगले वाला, तो वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड नहीं था तो वोल्टेज 0 थी उसके क्रॉस, अपॉन 200 प्लस 200 हो गया 400 पिको फैरेड, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल देख लेते हैं कितना आया, तो यहाँ से 2 0 कट गई, 50 वोल्ट आ गया ये। तो यदि कॉमन पोटेंशियल 50 वोल्ट है तो ये पूछ रहा है कि जब कनेक्ट कर दिए थे तो एनर्जी लॉस कितना होगा, तो ई लॉस हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी जो होगी वो इसके पास होगी जो जिसको बैटरी से जोड़ा था, हाफ C1V1 स्क्वायर, और माइनस जो एनर्जी होगी ये दोनों के पास होगी क्योंकि वो कनेक्टेड थे बाद में ना, हाफ C1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, तो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर माइनस कॉमन पोटेंशियल पे चले गए ना, तो V स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा C1 प्लस C2 ये। तो यहाँ पुट करते थे वैल्यू, C1 कितना था 200 पिको का मतलब 10 की माइनस 2, वोल्टेज कितनी थी उसकी 100 का स्क्वायर, माइनस कॉमन पोटेंशियल कितना था 50 स्क्वायर अपॉन 2, और जाएगा 200 प्लस 200 पिको फैरेड, और कॉमन आ जाएगा 10 की माइनस 12। तो ये आंसर जूल में आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0.5 इंटू 10⁻⁶। कॉमन पोटेंशियल भी क्वेश्चन था, दोनों का कैपेसिटेंस सेम था, एक को हमने बैटरी से कनेक्ट किया फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जो अनचार्ज था, तो so they will share charge till they have equal potential, that equal potential is called
कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, जब उनको जोड़ दिया आपस में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कॉमन पोटेंशियल के। कॉमन पोटेंशियल निकालने का एनर्जी लॉस रहता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ C1V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो शुरू में तो ये, और फाइनली वो कॉमन पोटेंशियल पे चले गए, तो ये पहले की एनर्जी, ये दूसरे की एनर्जी, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो दैट विल बी दी एनर्जी लॉस्ट जो हुई। तो ये था केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा। और अब देख लेते हैं कि अगला क्या, अगला है कि पावर ऑफ क्रेन लिफ्ट से मास 20 मीटर हाइट पे 10 सेकंड में। तो पावर क्या होती है, W/T। W क्या होता है, mgh/T हो गया। मास कितना लिफ्ट किया 1000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था 9.8, h कितना था 20, और कितने सेकंड में किया ये 10 सेकंड में। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19.6 इंटू 10⁻³ वाट। पावर का वाट रहता है ना, तो 19.6 10⁻³ मीन्स किलोवाट। ऑप्शन 3। उसके बाद बर्नर कैलिपर का एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देखो, क्या चाहिए, तो सिंपल सा लग रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं पूछा है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो आपका 10 BSD है वो 16 MSD के बराबर है। तो 10 BSD जो है वो कितना है 16 MSD। तो एक 1 BSD की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 16/20 BSD सॉरी, तो 20 MSD हो जाएगा यहाँ से। तो हो जाएगा 4/4/5 MSD। अब मुझे पता कि 1 BSD की वैल्यू आपको पता लग चुकी है इस बर्नर कैलिपर में। तो इसका लीस्ट काउंट जो रहता है वो रहता है 1 MSD माइनस 1 BSD। सो यहाँ से 1 MSD को ऐसे लिख देते हैं और 1 BSD का यहाँ से पुट कर देते हैं। सो इट इज 4/5 MSD। MSD कॉमन ले लो, MSD कॉमन आ गया लो, और यहाँ 1 - 4/5 बचेगा। तो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 5 - 4 ये 1/5 बचेगा MSD। एक MSD की वैल्यू है 1 mm, तो इट इज 1 mm। आ जाएगा आपके पास 0.2 mm, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो डेसिमल के बाद एक जीरो और लगाते हैं। ठीक है, सो ये आ गया ऑप्शन 3। जो का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि व्हेन ए रूलर फॉल्स वर्टिकली, अच्छा वर्टिकली गिर रहा है एक फुट्टा जिसको हम बोल सकते हैं, 5 डिफरेंट पर्संस का है। तो जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है नहीं, सो भाई जिसमें रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा वो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय रूलर फॉर ईच पर्सन। तो रिएक्शन टाइम बी में ज्यादा है तो बी ग्रेटर देन, ये आ गया बी आ गया ग्रेटर देन। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है ये ई, तीसरे नंबर पे है ए, चौथे नंबर पे है डी, और लास्ट वाले नंबर पे है सी। तो ये होगा डिस्टेंस का ऑर्डर, ये दिस विल बी दी ऑप्शन 3। मतलब जितना ज्यादा रिएक्शन टाइम होगा उतना ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई थिंक ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26, बी 26 ही हुआ। ये ले लेते हैं 27। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, तो ऐसे दिख रहा है कि ये है ये बहुत आसान। तो भी इसमें कुछ नहीं है कि यूनिफॉर्म वायर है, इसका 4 ओम रेजिस्टेंस है, उसको यहाँ से ऐसे बी मोड़ा, सी मोड़ा, डी मोड़ा। तो 4 ओम रेजिस्टेंस है तो यहाँ भी 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम। ठीक है, तो ये 1 ओम रेजिस्टेंस जो है, फिर इसके ए और सी के क्रॉस एक बैटरी लगा दी ये वाली, तो ये तो बैलेंस ब्रिज हो गया भाई।
ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे चले जाएंगे, कौन कौन, बी और डी। तो इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा जिसमें 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये दोनों एक और एक सीरीज में हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, हो गया 1+1 2, ये और ये भी सीरीज में हो गया 1+1 2, 2 और 2 पैरेलल हो गए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी 1। पी क्यू आर एस आपने पढ़ा होगा, पी क्यू आर एस सभी सेम वैल्यू के होते हैं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के क्रॉस भी वही होगा जो वो खुद है, मतलब 1 ओम। तो 1 ओम की बैटरी के साथ, तो 1 ओम रेजिस्टेंस को 2 वोल्ट से जोड़ा है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। बी इज 2 वोल्ट अपॉन आर, आर मैंने बताया इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 एम्पियर करंट विल फ्लो based on this very simple question. अब देख लेते हैं 28 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रूम हीटर है जिसके ऊपर लिखा गया 400 वॉट 220 वोल्ट को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हो गया कि अब इसको आप 200 वोल्ट पे लगा रहे हो, तो पहले तो इसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पावर होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, रेटिंग से रेजिस्टेंस निकलता है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन पी, तो बी स्क्वायर कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन 400, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ओम में। फिर इसको आपने उठा के डाल दिया 200 वोल्ट पे, तो अब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो इजी फॉर्मूले को लगाएंगे। मतलब यदि तुम सप्लाई वोल्टेज उसको दे रहे हो, उसको चेंज करते हो, तो रेजिस्टेंस थोड़ी बदलेगा इसका, ये चीज कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा, वी स्क्वायर। पावर का कितना होगा अब इसका मतलब P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं उसको, डायरेक्टली है। P2 पूछा है तो P2 बचेगा यहाँ से P1 V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर, तो P1 कितना है, शुरू वाला पावर 400, और V2 और V1 कितने हैं, V2 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 मतलब 200, 200 अपॉन 220 का होल स्क्वायर। इसको तुम सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर विल बी 331 वॉट, इतना डिलीवर करेगा, इतना पावर ही कंज्यूम करेगा। जब 220 वोल्ट भी यूज करोगे तो 400 वॉट कंज्यूम करेगा, और जब 200 वोल्ट पे इसको लगाओगे तो ये कम पावर कंज्यूम करेगा, और दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 331 वॉट। ओके, सो ये था क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 29। सो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी देखने से लग रहा है कि जी ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पे 100 टर्न्स क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल, रेडियस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ध्यान रखें, टेस्ला एसआई यूनिट है, और सीजीएस में दिया है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। सो सर्कुलर कॉइल के केस में तुम्हें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो रहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई होता है, लेकिन कितना रहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए, दिस विल बी द आंसर। ओके, और नंबर ऑफ टर्न्स एन ना तो यहाँ से मल्टीप्लाई करता है, तो यदि ये पाई पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा है, बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई अपॉन 2
यहाँ से 2a इधर आ जाएगा, 2ab अपॉन म्यू नॉट एन। ए जो है वो रेडियस है, तो 2a रेडियस कितना है बोलो 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो इसको 5 इंटू 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड कितना टेस्ला है 3.14 इंटू 10⁻3। तो ये लिख देंगे यहाँ पे 2ab अपॉन म्यू नॉट एन, रेडियस हो गया 10⁻5 इंटू 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड हो गया 3.14 इंटू 10⁻3। न्यू नॉट हो गया दी हुई है वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 100। तो करंट यदि तुम यहाँ से निकालो काटो इसको, यू विल गेट 2.5 एम्पियर। और आगे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कॉइल का एन आई इंटू एरिया, तो हो जाएगा NI पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सर्कुलर शेप का कॉइल है ना, एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने रेडियस बोल दिया है, ठीक है। सो यहाँ से यदि आप उसको n की वैल्यू 100, आई की वैल्यू 2.5, पाई की वैल्यू 3.14 और ए की वैल्यू रेडियस मीन्स 5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर भी है। सो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस will be the magnetic dipole moment of the coil. So calculation based था, simple formula based question, was very simple। 30th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 30th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये लूप है जिसकी साइड है 8 और 3, और इसमें थोड़ा सा एक स्मॉल कट लगा दिया हमने। जैसे एक लूप है, इसकी साइड ये 3 है और इसमें स्मॉल कट 3 सेंटीमीटर पे स्मॉल कट है, ठीक है। तो ये आ गया आपके 3 सेंटीमीटर, इस पे कट लगा दिया ये, और जिस पे कट लगाया ना वो वाली आएगी पिक्चर में। कितने सेंटीमीटर थी 3 सेंटीमीटर, और ये कितनी थी 8 सेंटीमीटर, और इसको नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ द लूप लगा दी फील्ड, क्रॉस फील्ड लगा दी होगी या डॉट फील्ड लगा दी होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। तो इसमें जो इंड्यूस प्रोड्यूस होगा वो होगा BLB, आपको पता ही है फॉर्मूला, मोशनल EM पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ आपने ये चीज देखनी होती है कि कौन सी साइड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इंड्यूस्ड, ठीक है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज इन डायरेक्शन ऑफ द शॉर्टर साइड बोला है, शॉर्टर साइड, ठीक है। और डायरेक्टर डेवलप अक्रॉस द कट किसको लगाया 3 सेंटीमीटर वाली को। तो यहाँ जो डिस्टेंस लेना है वो यहाँ लेना है जिसको कट लगाया आपने, उसके एंड्स के क्रॉस ही इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। सो बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 टेस्ला, और कट कहाँ लगाया उसके क्रॉस इंड्यूस्ड EMF आएगा, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻², और इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था 2। तो मुझे लग रहा है ये आपके पास आ जाएगा 1.8 इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 2 10⁻²। मीटर में लिखना, मीटर पर सेकेंड में तो आ जाएगा ये 10⁻⁻4, जिसमें कंट्रोल रहता है वोल्ट, ऑप्शन 4। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस साइड को कट करेंगी उसके एंड्स के क्रॉस ही मोशनल EMF प्रोड्यूस होगा। तो वो 3 सेंटीमीटर वाली, तो यहाँ 3 लिखना है आपने, लेंथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदलना है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लिखना है। 30 हो गया, 31st पे चलता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो उसमें बोला जा रहा है कि फोर्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू
तो जब भी हम पढ़ाते हैं आपको तो सिंपली हम बोल देंगे इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन ठीक है इसका। और जो हम पढ़ाते हैं कि मास डिफेक्ट होता है वो ये होता है द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, उनके मास का सम, उनका मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। जो डिफरेंस रहता है दैट इज मास डिफेक्ट, उसको लॉस्ट मास बोलते हैं। और वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर न्यूक्लियस को आपस में क्या रखता है, उनको बाउंड टुगेदर। ठीक है, न्यूक्लियस को वो बाइंड रखता है आपस में। तो बी एंड डी करेक्ट है और ए एंड सी फॉल्स। बाकी ये जो वॉल्यूम न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3 वो नहीं, बोलो रेडियस का फॉर्मूला रहता है आर नॉट ए की पावर 1/3, वो रेडियस प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 1/3 के, ना कि वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है इसका। और देखते हैं 32 हो रहेगा नो मास ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी दिस मच मास, तो मास नंबर इज अप्रोक्सीमेटली, तो डेंसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है। क्लियर? तो जो आपका पूछा है वो मास नंबर ए पूछ रहा है ये। ठीक है, तो डेंसिटी तो रहती है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो मास भी दिया और डेंसिटी भी दी हुई है। तो मास यदि है वॉल्यूम न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है तो वॉल्यूम ये रहता है उसका 4/3 पाई आर क्यूब। और यदि हम आगे चलें तो 4/3 पाई और आर की वैल्यू होती है आर नॉट ए रेज़ टू द पावर 1/3 और उसकी पावर कितनी 3। तो यहाँ से रो आ गया आपका 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट की पावर 3a। तो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है तो यहाँ से आप a निकाल सकते हो। यहाँ से a हो जाएगा, रो नीचे आ जाएगा 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट की पावर 3 और यहाँ रो। और यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है इतना, ये वैल्यू यहाँ पर होगी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये दी हुई है, ये वैल्यू आप यहाँ पर होगी। आर नॉट की वैल्यू भी दी हुई है 1.2 इंटू यहाँ पर होगी। और 4 पाई की वैल्यू दी है 12. तो यहाँ मास लगभग लगभग आपका 12 आ जाएगा, मास नंबर जो आएगा ये। ऑप्शन ए वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि स्टूडेंट ऑफ +1 कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 30 ऑसिलेशंस उसने नोट करी 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन होगी? 30। एक सेकंड में जो ऑसिलेशन होती हैं दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से कर लो कि 30 ऑसिलेशन हुई 60 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन के लिए लिया गया समय होता है 60/30 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 सेकंड, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड लग गया पता, तो आपको पता है कि 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी उसका टाइम पीरियड होता है। स्क्वायर करो दोनों तरफ तो हो गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से लेंथ जो है वो हो जाएगी आपकी जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई स्क्वायर 4 इंटू 9.8। और ये जी की वैल्यू जो थी वो 10 के बजाय इसमें हालांकि 9.8 दी हुई है, देखो तो ये 9.8 कैंसिल, तो 12 मीटर लेंथ होगा इसका। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। इससे आसान क्या हो सकता है भाई? आपको इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट 100 वाट, तो हीट तो सप्लाई कर रहा है 100 वाट पे, 100 वाट पे क्यू सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब 100 जूल पर सेकंड रेट से एनर्जी सप्लाई हो रही है। सिस्टम यदि वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है 75 जूल एक सेकंड में। ठीक है,
तो यू तुम्हें पता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बोलता है जो हीट सप्लाइड होगी दैट विल बी व्हाट, इट विल इंक्रीज इंटरनल सिस्टम एंड विल डू वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये आ जाता है सिंपल। तो यहाँ से यू क्या होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना है 100 minus 75, so it will be 25 joule per second. Joule per second is what, 25. Fourth option will be correct option. So this will be now 35th question. अरे भी लेंथ दी हुई है एक वायर की इतनी है, लीनियर मास डेंसिटी m है। लीनियर मास डेंसिटी को हम यदि लैम्डा बोल देते हैं तो वो होता है मास बटा लेंथ m अपॉन l। तो m हो गया यहाँ से लैम्डा l। ठीक है जी, मास लग गया पता उसका। फिर इसको बेंट कर दिया आपने सर्कुलर रिंग में, ठीक है, सेंटर सी है उसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट एक्सिस बाय वाई डैश। तो भी ये आपका रिंग है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इस एक्सिस के अबाउट आपको पता होना चाहिए इस डायमीटर बन गया इसका और ये रेडियस यदि इसका कितना है, मान लेते हैं आर। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसके अबाउट पता करना है तो जो पैरेलल एक्सिस का घूम रहता है वो रहता है आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस एम और डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अभी जो आई होता है वो डायमीटर, ये होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एम की वैल्यू पुट करनी है लैम्डा एल। लीनियर मास डेंसिटी एम थी, सॉरी, लीनियर मास डेंसिटी एम है तो लीनियर मास डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ पे मास एम है तो एल लेंथ पे हो जाएगा एम एल। ठीक है, तो ये होगा रिंग का मास, कैपिटल एम बोल देते हैं इसको, ये होगा एम एल। ठीक है, तो यदि मैं इसको करूँ तो 3/2 एम एल और रेडियस क्या रहेगा इसका, जब घेरे में कर देंगे तो जो आपका रेडियस है सर्कमफेरेंस है दैट विल बी लेंथ, सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो हो जाएगा एम एल और आर की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो इज वेरी सिंपल नाउ, 3/2 एम एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 एम एल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर। ठीक है, एल की पावर यहाँ एम एल स्क्वायर का एल और था तो एल की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ 3। So is ml 3 ml cube upon 8 pi square, 3 ml cube upon 8 pi square. Very simple question. But it is now option 2 is correct. Okay, so it is 36 now. So 36 ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है और फुल स्केल रिफ्लेक्शन वाला करंट है, मतलब आई है 3 मिली एम्पियर, मतलब 3 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में, जो आईसी है बेसिकली वो करंट विच प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो इट इज 1 मिली एम्पियर, मतलब ये हो गया 10⁻³ एम्पियर। पूछ रहा है शंट कितना चाहिए गैल्वेनोमीटर को यदि कन्वर्ट करना है आपने एमीटर में, तो वेरी लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। यदि करंट यहाँ से मैक्सिमम करंट जो आ सकता है वो आई है और यहाँ गैल्वेनोमीटर में उसका कुछ पार्ट फ्लो कर गया तो रिमेनिंग पार्ट जो था वो इधर चला गया, आई माइनस आई सी। ये जी और एस पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मींस करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये आ गया इसमें, और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस आई जी, तो यहाँ से एस क्या होता है आई जी अपॉन व्हाट, आई माइनस आई जी, सारी सो आई जी कितना है 10⁻³ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम दिया हुआ वहां पे, आई कितना है 3 × 10⁻³ और आई जी कितना है 10⁻³। इसको तुम सॉल्व करोगे ना
तो आपके पास ये ऑप्शन ए आ जाएगा इज इक्वल टू 0.01 ओम। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है 37 नाउ क्वेश्चन वेस्ट बोर्ड लेवल के क्वेश्चन बोलते हैं इनको, इनको नहीं बोलेंगे हम कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस। इस एक्सपेरिमेंट में ई एंड जी आर इंटरचेंज्ड, जब तुम यहाँ जी लगा दोगे या ई कर दोगे तो फिर तुम्हें पता ही ऐसे तुम एक्सपेरिमेंट करते हो है ना, तो जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करते हो, इस वायर के ऊपर स्लाइड करोगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में करंट हो जाएगा 0 और बोलोगे कि बैलेंस पॉइंट आ गया। तो हाँ पूछ रहा है कि क्या होगा, गैल्वेनोमीटर क्या बोथ राइट हैंडेड एंड रिफ्लेक्शन हो सकता है, बैलेंस पॉइंट पे IG 0 हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके सो इट इज नाउ 38th क्वेश्चन। हाँ इसको देखने से लग रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पीक ऑल्टरनेटिंग करंट आई नॉट दिया हुआ है, तुम्हें पता है कि जो आई होता है बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहता है करंट का, वो साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इनटू टी ऐसे होता है। से बोल रहा है कि पीक वैल्यू 5 है और करंट को पीक वैल्यू तक जाना है, तो 5 तक जाना है तो कितना टाइम लेगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दिया 60 इंटू टी, टी निकालना टारगेट है। तो 5 यहाँ कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 1 और इधर बचा साइन 120 पाई टी। अब ये साइन 1 है अगले स्टेप में, तो साइन 1 होता है साइन पाई बाई 2 91 होता है। ठीक है तो यहां से आ जाएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू 120 पाई टी, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो आ जाएगा 1/120 इंटू टी, मतलब इतने टाइम के बाद 1.240 सेकंड के बाद जो करंट है वो अपनी पीक वैल्यू अचीव कर लेगा, दैट इज 5 एम्पियर। आज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यदि हम 39th को देखें ना ध्यान पूर्वक, तो वही इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि एक सॉलिड वायर है और वो क्या कर रही है वायर, लेट्स चेक इट। फिगर शोज लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेडियस भी दिया उसका है, स्टडी करंट भी चल रहा है इसमें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके क्रॉस सेक्शन के क्रॉस द प्लॉट, मैग्नेटिक फील्ड का प्लॉट डिस्टेंस आर के साथ। तो इसमें सिंपल है कि जब हम वायर का मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, जब हम अंदर की बात करते हैं किसी भी पॉइंट पे यहाँ अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है और जब हम बाहर आ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। तो इसको हम प्लॉट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और ये आर ले लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अंदर तक है, ये इसके सरफेस पे आ गए हम, और यदि इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक आर है तो यहाँ आर पे पहुंच गए हम। ठीक है उसके बाद बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कुछ ऐसे आएगा, तो ये ऑप्शन 1 रहेगा। इस रीजन में अंदर वाले क्षेत्र में बी डायरेक्टली टू आर है और बाहर वाले में बी इनवर्सली टू आर होता है इसमें। ऑप्शन 1 है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। 40th का देख लेते हैं, डायोड के ऊपर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। When forward bias voltage across PN junction diode increases a certain threshold voltage diode current, बिल्कुल ठीक है भाई। डायोड में जो फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट में जो, यदि हम फॉरवर्ड वोल्टेज ऐसे प्लॉट करते हैं, फॉरवर्ड करंट ऐसे प्लॉट करते हैं, तो यहाँ तक वेरी लिनियर होता है, लेकिन उसके बाद ये लीनियरली इंक्रीज करता है करंट, ये नी वोल्टेज रहती है वो पता है वी के। ठीक है तो पोटेंशियल वेरिएशन एलिमिनेट हो जाता है इस वोल्टेज पे, और उसके बाद करंट ओम्स लॉ की तरह वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई की तरह बिहेव करता है, इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। ठीक है और करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, यहाँ नहीं आता, वो रिवर्स बायस में आता है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है।
statement A is true, B is false. Okay. सो ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आगे है नंबर 41। ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही है। 41 में देखो क्या हो रहा है। करेक्ट। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू सरफेस पोटेंशियल के बराबर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी। डज नॉट का मतलब हो गया कि सरफेस पे यदि रेडियस r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन कितने एरिया पे है वो, 4 पाई r स्क्वायर पे। सरफेस पे रहेगा ना चार्ज यहाँ ऐसे। तो भाई इसमें क्या है कि क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर को हम बोल सकते हो सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे रहेगा E इज इक्वल टू, मतलब इस चीज को सिग्मा बोल सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पे डिपेंड करा है यहाँ, और डज नॉट डिपेंड, ये रॉन्ग है। ठीक है, स्फेरिकल शेप का ये। इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में चार्ज आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है। ठीक, ओके। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। सरफेस बिल्कुल नॉर्मल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ तो नॉर्मल होगी सरफेस की। ठीक है, नॉर्मल मतलब जैसे ये लाइन आ रही है तो इलेक्ट्रिक नॉर्मल होगी, ये रेडियस के अलॉन्ग होगी, रेडियल होती है, यहाँ आ रही है तो ये रेडियस के अलॉन्ग होगी। बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, बिकॉज dv अपॉन dr क्या होता है, dv अपॉन dx या dr रहता है आपका E इज इक्वल टू, ये होता है ना फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो v को क्या आना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जो इसके सरफेस पे होगा पोटेंशियल वही अंदर हर पॉइंट पे होता है, उतना ही सेंटर पे होता है। अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और उस वैल्यू सरफेस जितना होता है उसके इक्वल होती है। तो पोटेंशियल जीरो वेरीफायर, ये रॉन्ग है। इसमें ACD ओके है, ACD ओनली। फोर्टी टू देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, 5 बोल देते हैं वर्क फंक्शन को। सो 5 इज इक्वल टू 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी जो रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ होगी वो डज नॉट गिव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फंक्शन इतना है तो जो लाइट पड़ेगी यदि उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी इस फाई से, तभी रेडिएशन होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट होंगे। एच न्यू देखना है इसका, न्यू मतलब एच सी अपॉन लैम्डा देखना है। न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, ये होती है एनर्जी, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से बात करेंगे तो देखो ये जो फॉर्मूला रहता है ये सिंपल, जब वेवलेंथ्स नैनोमीटर में होती है ना तो बिल्कुल सिंपल याद रखना है कि जो एनर्जी होगी वो होगी 1240 के आसपास लगभग, अपॉन जो वेवलेंथ होगी वो किस में लेनी है, नैनोमीटर में। तो यहाँ पे नैनोमीटर में दी जा रही है, तो यदि आ जाएगा 1240 अपॉन पहले वाली वेवलेंथ चेक कर लेते हैं 100, तो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया, तो आ गई 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ये ज्यादा आ गई फर्क फंक्शन, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा ही होता है 6.6, इसका मतलब मिशन यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, मिशन यहाँ पॉसिबल है। और यदि हम दूसरे वाली भरेंगे 200, यदि यहाँ 200 भर देंगे तो हो जाएगा 1240 अपॉन 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आ जाएगी आपके पास 6, तो मतलब 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कम है वर्क फंक्शन से, तो एमिशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ एमिशन नहीं है। तो इसका मतलब ये पूछा है कि एमिशन कहाँ नहीं होगा, डज नॉट, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा।
इनमें आप चेक करोगे तो इससे ज़्यादा ही आएगी, तो एमिशन यहाँ भी संभव है, यहाँ भी संभव है, यहाँ संभव नहीं है 3। तो इसमें सिंपल याद रखते हैं कि जब वेवलेंथ नैनोमीटर में हो तो यहाँ 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वो हो गया 42, अब लेते हैं 43। A concave lens in a conical ray of light emanating from the object parallel to the principal axis of the lens. अच्छा, तो ये सिंपली एक कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें यदि प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, यदि रे ऑफ लाइट ऐसे आती है तो आपको पता है कि वो डाइवर्ज होती है, ऐसे ऐसे जाएगी रियलिटी में इधर को, और आपको लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से, ये ऑप्टिकल सेंटर आएगा। और यदि ऐसे जा रही है तो क्या होगा, तो यहाँ से ऐसे आएगी। अब जब इसको बैकवर्ड यूज करेंगे फिर वो लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से। तो डाइवर्जिंग लेंस होता है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। वेरी सिंपल, सेकंड ऑप्शन होगा इसका 44। सो 44 में क्या है कि सबमरीन इज डिजाइन टू विथस्टैंड एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब ये होता है कि उसमें दोनों ऐड होते हैं। पी एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि उसमें एटमॉस्फेरिक भी है प्लस हाइड्रोस्टैटिक है, ये HROG इसको बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इतना प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, 1 एटमॉस्फेयर लग ही रहा है यहाँ पे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग ही रहा है, प्लस एब्सोल्यूट वो कितना ले सकता है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो फिर बताओ कि हाउ डीप कैन इट गो बिलो वाटर सरफेस। हाउ डीप का मतलब ही सेइंग एच निकालो, तो HROG। ठीक है, तो HROG जो होगा बेसिकली हो जाएगा 100 - 199 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से आज क्या हो जाएगा, 99 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन ρg, तो हो जाएगा 99 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में लिखना है 10⁵ अपॉन रो डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁵, जी की वैल्यू 10। तो यह आ जाएगा 99 इंटू 10 ही बचेगा, तो यह आ जाएगा 990 मीटर। तो 990 मीटर यदि वो नीचे होगी तो इतना जा सकती है वो। यदि यदि वो इतने प्रेशर को होल्ड कर ले, कितना 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें नीचे तक वो कर सकती है इतनी डेप्थ में जाके सबमरीन। ठीक है, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मैचिंग क्वेश्चन। तो इसमें जो आपकी रहती हैं माइक्रोवेव्स होती हैं, वैसे सिंपल आप ले लो कि विजिबल लाइट कब प्रोड्यूस होती है, बोर इफेक्ट में, बोर्स मॉडल में आपने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में जंप करेगा। तो ये आ गया पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स emit light and they move from higher energy level to lower energy level। ठीक है, एंड गामा रेज का प्रोड्यूस होती हैं, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, तो ये दूसरे से आ जाएगा। ठीक है, और माइक्रोवेव आपने पढ़ाई है कि ये क्लेस्ट्रॉन बॉल और मैग्नेट्रॉन बॉल से उनके प्रोडक्शन का कारण रहता है। ठीक है, इंफ्रारेड रेज, तो ये बचा फिर वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो पहले का आ गया 4th, दूसरे बी का आ गया 1, सी का आ गया 2 और डी का आ गया 3, डी का 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। सो पेपर वाज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू नीट 2025। नीट 2026 जो था वो बड़ा सिंपल पेपर था। आपने देख लिया कि इसमें कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। तो इस बार जो मेरिट है वो काफी हाई जाएगी। सो ओके देन।